Welcome students. In this lecture we will take up the proof of Leibniz theorem and then we will also take an example as an application to find the derivative or to find nth derivative of the product of two functions using Leibniz theorem. So we will begin with the statement of the Leibniz theorem. It states like this: if u of x and v of x are two n times differentiable functions, then the nth derivative of the product u of x into v of x is given by, this is usually denoted in this way, uv then power n, which is defined as or given by summation k from 0 to n, n c k u, the kth derivative of u, into the n minus kth derivative of v, where this uk denotes the nth derivative of kth derivative of u, denotes kth derivative of u, and the k n minus k denotes the n minus kth derivative of v, and moreover this n choose k. We already know this from the binomial theorem that this is equal to n factorial divided by k factorial into n minus k factorial. Okay, now we begin the proof of this theorem. We will prove this theorem using the principle of mathematical induction, and here we will also recall what we mean by the principle of mathematical induction, so we will mention it here. So this is the principle of mathematical induction. So सबसे पहले हम लिखेंगे इसका statement. This principle states that if a statement is true for n equal to 1, then we assume, then with the assumption that the statement is true for n equal to k. If we show the statement is also true, the statement is true for n equal to k plus 1, then principle of mathematical induction, then the principle states that the statement is true for all n. So how we have to apply the principle of mathematical induction to prove some statement? तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे that the given statement is true for n equal to 1. उसके बाद हम दूसरा स्टेप हम assume करेंगे the statement is true for n equal to k, and the third step is हम प्रूव करेंगे the statement is also then true for n equal to k plus 1. अगली तीन चीजें हम कर सकते हैं. Then this principle states that the result of that statement must be true for all values of n. तो यही चीज अब हम इस लेबनीज थ्योरम में प्रूव करेंगे. We will first prove that the result is true when n is equal to 1. Then we will assume the result is true when n is equal to some fixed integer a, or we will choose some m or some l. उसके बाद हम प्रूव करेंगे the statement is true for the next integer also. तो अगर हम ये कर सके, then we can conclude the statement is true for all values of n. So our first step in the proof is like this. Prove for n equal to 1, the statement becomes, we have like this. Leibniz theorem becomes like this. Summation or the first derivative of uv for n equal to 1, we get uv power 1 is equal to summation a running from 0 to 1 c k u k derivative and v 1 minus k derivative, because we are putting n equal to 1. So this is what the statement becomes when we put n equal to 1 in the statement. तो यहाँ पे हमें इस स्टेटमेंट में मिलेगा n equal to 1 पुट करके uv पावर 1 आएगा यहाँ पे. So k runs from 1 to 0 to 1, यहाँ पे बनेगा 1 ck, and here we have same uk p and minus k. तो अब हम देखना चाहते हैं कि इसका राइट हैंड साइड क्या बनेगा. So now this is equal to on the right hand side putting k equal to 0. So पहली टर्म यहाँ पे आएगी 1 c 0, u तो यहाँ पे 0, v तो ऊपर 1 minus 0, then plus now put k equal to 1, so we get 1 c 1. तो u के ऊपर पावर में 1 आएगा and v पावर 1 minus 1. So this is equal. Now we know this 1 c 0 is always equal to 1. So the first term becomes u 0 v 1, then plus
1c1 is also equal to 1, and this gives us u1 v0. Now what we mean by this notation u0? u0 means the zero derivative of u. That means the function u itself, and v1 means the first derivative of v. We can write it as v dash, then plus u1 means the first derivative of u, जिसको हम लिख सकते हैं u dash से, and v0 means the zero derivative of v, जिसको हम लिख सकते हैं simply v. और ये हम जानते हैं कि u v power 1, that means first derivative of u, वो हमें मिल गया first function derivative of second plus the second function derivative of first, जो हम पहले से जानते हैं प्रोडक्ट रूल इसी तरह से काम करता है फॉर डिफरेंशिएशन. तो इसका मतलब ये हुआ that the result is true for n equal to 1. So thus the result is true for n equal to 1. अब इसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के रूल के हिसाब से हम एज्यूम करेंगे the result is true for n equal to m. So now this is our second step. Assume the result is true for n is equal to m. तो इसका मतलब क्या है? That is what we assume, that is we have this thing, the mth derivative of uv. तो ये इसके बराबर होगा, तो हमें हर जगह पे गिवन स्टेटमेंट में n की जगह पे m लिखना है. So this will be summation k from 0 to m. Now mck uk v m minus k. So this is what we mean by the statement is true for n equal to m. So we will now prove the statement is true for n equal to m plus 1. So we prove the statement is true, or the result is true for n is equal to m plus 1. तो इसका मतलब हमें प्रूव करना है u v का m plus 1 डेरिवेटिव बन जाएगा समेशन k from 0 to m plus 1 c k u k v m plus 1 minus k. तो अब हम देखेंगे कि इसका m plus 1 डेरिवेटिव क्या बनेगा. तो हम इस तरह से करेंगे. सो वी हैव दिस u v पावर m plus 1, that means इसका m plus 1 डेरिवेटिव, तो plus 1. तो इसको हम लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे m इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, तो हमें इसको इस तरह से करना होगा. दिस इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं द डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी पावर m. अब जो यू वी का m plus 1 डेरिवेटिव है, that is it's the derivative of u v mth derivative of derivative. So therefore m plus 1th derivative of u v is the derivative of mth derivative of u v, जो हमने इस तरह से लिख लिया. So now we can write this as, so this is equal to d by dx of, अब जो mth derivative of u v है वो हमने इंडक्शन में एज्यूम किया है यहाँ पे इस स्टेप में. So this is our step for mth derivative. तो यही वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. समेशन k from 0 to m mck kth derivative of u m minus kth derivative of p. तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले हमने लिया m plus 1 डेरिवेटिव ऑफ u, जो हम डिफाइन कर सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ mth डेरिवेटिव ऑफ uv. सो इट इज इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ, अब जो mth डेरिवेटिव ऑफ uv है वो हमने यहाँ पे एज्यूम्पशन स्टेप में एज्यूम किया है. तो दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया. and then the next term will be like this. So this is equal to, अब जो यहाँ पे ये डेरिवेटिव है, वी नो ये लीनियर फंक्शन होती है, तो हम समेशन को बाहर ले सकते हैं. दिस इज इक्वल समेशन k from 0 to m, डेरिवेटिव को अंदर ले सकते हैं. बट यहाँ पे एम सी के जो है दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो हम इस तरह से कर सकते हैं. दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ, जो अंदर फंक्शन है u k v m माइनस k. तो ये बन गया समेशन एम सी के डेरिवेटिव ऑफ यू के वी एम माइनस के. अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, एक है u पावर k यानी k डेरिवेटिव ऑफ u, एंड दूसरी फंक्शन है m माइनस k डेरिवेटिव ऑफ v. तो इस पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं, जो हमारा केस फॉर n इक्वल टू 1 है. तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से समेशन k फ्रॉम 0 टू m m c k. अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे यूजिंग द प्रोडक्ट रूल. तो प्रोडक्ट रूल में पहले हम u सपोज k का डिफरेंशिएशन करेंगे. वी विल गेट u k प्लस 1. तो हमें ये इस तरह से मिल जाएगा u, इसका डिफरेंशिएशन आएगा u k प्लस 1, और v को हम ऐसे ही रहने देते हैं v m माइनस k. मैंने डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन को ऐसे अनचेंज रख दिया. देन प्लस, अब सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, पहली फंक्शन को ऐसे ही रख लेते हैं. सो वी विल गेट u k एंड डिफरेंशिएशन ऑफ v यानी m माइनस k का डेरिवेटिव, वो m माइनस k प्लस 1 बन जाएगा, यानी नेक्स्ट डेरिवेटिव पे पहुंच जाएगा. ओके, देन वी गो हियर. दिस इज इक्वल समेशन k running from 0 to m, this is equal to m c k
अब ये हम दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग लिखेंगे. So here we will have u k plus 1, then v m minus k, then plus. अब second summation k running from 0 to m, again we will have this mck here, mck, then u k derivative and v m minus k plus 1 derivative. तो हमें यहाँ पे दो टर्म्स मिलेंगे. अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, पहले हम सेकंड टर्म लिखेंगे, फिर हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे. सो दिस इज इक्वल टू समेशन k running from 0 to m, mck, then k derivative of u and m minus k plus 1 derivative of v, then plus जो यहाँ पे पहली टर्म है वो यहाँ पे हम दूसरी टर्म लिख देंगे, समेशन k from 0 to m, mck, then k plus 1 derivative of u and m minus k derivative of v. अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहली टर्म को हम नेक्स्ट स्टेप में ऐसे ही लिख लेते हैं, समेशन k from 0 to m, दिस इज इक्वल टू mck uk v m minus k plus 1, देन प्लस. अब जो यहाँ पे ये समेशन है, हम यहाँ पे k की जगह पे रिप्लेस करेंगे k minus 1, तो हम k को रिप्लेस करने वाले हैं k minus 1 से, तो उससे ये k स्टार्ट हो जाएगा 1 से लेकर m plus 1 तक. अब जो यहाँ पे सेकंड टर्म एक्टिवली है, इसमें k स्टार्ट होता है 0 से लेकर m तक, तो यहाँ पे m plus 1 टर्म्स होंगी, given by k equal to 0, k equal to 1, k equal to 2 up to k equal to m. तो अब अगर हम k को रिप्लेस करेंगे k minus 1 से, तो k minus 1 स्टार्ट हो जाएगा 0 से, यानी k स्टार्ट होगा 1 से लेकर m plus 1 तक. तो इसको समेशन को हम ऐसे लिख लेंगे, सो कम समेशन k रनिंग फ्रॉम 1 m plus 1 to get all the m plus 1 terms. अब हम यहाँ पे लिखेंगे m c k minus 1, यानी k को रिप्लेस किया k minus 1 से, u. अब अगर इस k को रिप्लेस करेंगे k minus 1 से, ये बनेगा k minus 1 plus 1, सो दिस इज इक्वल k minus 1 plus 1. इसी तरह से v यहाँ पे बन जाएगा m minus k minus 1. Therefore in the next step this is again equal to summation k running from 0 to m. Now mck, this is here uk v m minus k plus 1, then plus summation k running from 1 to m plus 1, and here we have this mc k minus 1. Now this u k v m minus k plus 1. Now if we compare these two, अगर हम यहाँ पे जो ये स्टेप हमारे पास था और ये स्टेप है, सेकंड टर्म इन दोनों की जो अंडरलाइन हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे अगर हम k इक्वल 0 पुट करेंगे तो पहली टर्म हमें मिलेगी mc0 ukvm. यहाँ पे k इक्वल 1 से हमें एग्जैक्टली वही टर्म मिलेगी mc0 u1vm माइनस m plus 1, पर k इक्वल 1 हमें मिल जाएगा. तो जो टर्म हमें यहाँ पे k इक्वल 0 से मिलेगी वो यहाँ पे हमें k इक्वल 1 से मिलेगी. यहाँ पे जो k इक्वल 1 से मिलेगा ऊपर, तो नीचे वही k इक्वल 2 से मिलेगा एंड सो ऑन. तो इस तरह से लास्ट टर्म जो हमें यहाँ पे k इक्वल m से मिलेगी वो यहाँ पे k इक्वल m plus 1 से मिलेगी. सो वेयर these two relations actually they are same. Now in the next step what we do, अब हम कुछ टर्म्स यहाँ पे सेपरेट करेंगे. हम पहले सम का पहली टर्म सेपरेट करेंगे और दूसरे सम का लास्ट टर्म सेपरेटली लिखेंगे. Now put k equal to 0 here, so we will get m c0 u 0 v m plus 1, जो यहाँ पे पहली टर्म थी. तो फिर रिमेनिंग समेशन हम स्टार्ट ऐसे ही कर लेंगे, समेशन k रनिंग फ्रॉम 1 to m, k इक्वल 0 को हमने सेपरेट कर दिया, एंड समेशन इज सेम m c k u k v m minus k plus 1. तो बाकी एग्जैक्टली सेम रहेगा, सिर्फ k इक्वल 0 हमने इससे सेपरेट कर दिया. इसी तरह से जो दूसरा टर्म है इसमें हम करेंगे k रनिंग फ्रॉम 1 to m बराबर पहली m टर्म हम लिखेंगे, तो यहाँ पे सेम रहेगा m c k minus 1 u k v m minus k plus 1. लेकिन जो ये दूसरा सम है इसके लास्ट टर्म हम अलग लिखेंगे, देन प्लस. तो लास्ट टर्म लिखने के लिए हमें k को रिप्लेस करना होगा m plus 1 से. सो वी विल गेट दिस m c m, क्योंकि यहाँ पे k की जगह पे अगर हम m plus 1 लिखेंगे वी विल गेट m plus 1 minus 1, तो m ही रहेगा. सो हियर वी विल गेट u m plus 1 v, यहाँ पे अब k की जगह पे m plus 1 लिखना है, तो ये माइनस m minus 1 बनेगा, तो फाइनली वी विल गेट v0. सो दिस अवर दिस स्टेप, जहाँ पे हमने पहली सम से पहला टर्म सेपरेट किया और दूसरे सम से लास्ट टर्म सेपरेट कर दिया. नाउ दिस इज इक्वल टू, अब हम पहली टर्म फिर से ऐसे लिखेंगे m c0 u
0 v m plus 1 देन प्लस। तो अब हम देखेंगे ये जो हमारे पास सेकंड तरफ है यहाँ पे ये वाला समेशन और ये वाला समेशन, इनमें दोनों में समेशन है k रनिंग फ्रॉम 1 to m, और बाकी जो टर्म्स है एम सी के यहाँ पे है, एम सी के माइनस वन यहाँ पे है, लेकिन बाकी है यू के यहाँ पे भी, यू के यहाँ पे भी, बी एम माइनस के प्लस वन यहाँ पे भी, और बी एम माइनस के प्लस वन यहाँ पे। तो हम एक तो समेशन इसमें कॉमन ले सकते हैं, समेशन के रनिंग फ्रॉम 1 to m, फिर यू के बी एम माइनस के प्लस वन भी कॉमन ले सकते हैं, तो बाकी बच गया एम सी के ये प्लस हो जाएगा एम सी के माइनस वन के साथ, और कॉमन जो है इसमें वो है यू के बी एम माइनस के प्लस वन। तो ये हो गया दोनों टर्म्स का समेशन। देन प्लस जो हमने यहाँ पे टर्म सेपरेट की थी एम सी एम यू एम प्लस वन वी जीरो। एंड नाउ सी व्हाट वी यूज। नाउ वी विल यूज द फैक्ट हियर। जो एम सी जीरो होता है दिस इज इक्वल टू वन, लेकिन यही है वैल्यू बराबर एम प्लस वन सी जीरो। तो जो अगर नीचे जीरो होगा ऊपर कोई भी इंटीजर होगा दिस ऑलवेज इक्वल टू वन। एंड सेकंड थिंग इज जो एम सी एम है पास्कल ट्रायंगल में जो लास्ट कोफिशिएंट होता है या बाइनोमियल थ्योरम में फर्स्ट एंड लास्ट कोफिशिएंट है एम सी एम भी वन के बराबर होता है, और ये है ऑल्सो इक्वल टू एम प्लस वन सी एम प्लस वन, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वन। तो गया एक चीज जो हम पहली टर्म यहाँ पे सबसे यूज कर सकते हैं और इस लास्ट टर्म में यूज कर सकते हैं। अब जो बीच वाली टर्म है यहाँ पे जो समेशन है दिस इज एम सी के प्लस एम सी के माइनस वन, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू एम प्लस वन सी के, एम प्लस वन सी के, ये इसके बराबर होता है जो हमने किसी प्रीवियस क्लास में प्रूव किया होगा। सो प्रूव इन प्रीवियस क्लास। वेलकम स्टूडेंट्स, in this lecture we will take up the proof of Leibniz theorem, and then we will also take an example as an application to find the derivative or to find nth derivative of the product of two functions using Leibniz theorem. So we will begin with the statement of the Leibniz theorem. It states like this: if u of x and v of x are two n times differentiable functions, then the nth derivative of uv, then the nth derivative of the product u of x into v of x is given by this is usually denoted in this way uv then power n, which is defined as or given by summation k from 0 to n n c k u, the kth derivative of u, into the n minus k derivative of v, where this uk denotes the nth derivative of kth derivative of u, denotes kth derivative of u, and v k n minus k denotes the n minus kth derivative of v. And moreover this n choose k. We already know this from the binomial theorem that this is equal to n factorial divided by k factorial into n minus k factorial. Okay, now we begin the proof of this theorem. We will prove this theorem using the principle of mathematical induction, and here we will also recall what we mean by the principle of mathematical induction, so we will mention it here. So this is the principle of mathematical induction. So सबसे पहले हम लिखेंगे इसका स्टेटमेंट। This principle states that if a statement is true for n equal to 1, then we assume
with the assumption that the statement is true for for n equal k. If we show the statement is also true, the statement is true for n equal to k plus 1, then principle of mathematical induction, then the principle status that the statement is true for all n. So how we have to apply the principle of mathematical induction to prove some statement? तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. उसके बाद हम दूसरा स्टेप हम एज्यूम करेंगे द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, एंड द थर्ड स्टेप इज हम प्रूव करेंगे द स्टेटमेंट इज आल्सो देन ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1. अगर ये तीन चीज़ें हम कर सकते हैं, then this principle states that the result of that statement must be true for all values of n. तो यही चीज़ अब हम इस लेबनीज़ थ्योरम में प्रूव करेंगे. We will first prove that the result is true when n is equal to 1. Then we will assume the result is true when n is equal to some fixed integer a, or we will choose some m or some l. उसके बाद हम प्रूव करेंगे the statement is true for the next integer also. तो अगर हम ये कर सकें, then we can conclude the statement is true for all values of n. So our first step in the proof is like this. Proof for n equal to 1, the statement becomes, we have like this. We have Leibniz theorem becomes like this. Summation or the first derivative of uv for n equal to 1, we get uv power 1 is equal to summation a running from 0 to 1, 1 c k u k derivative, and v 1 minus k derivative, because we are putting n equal to 1. So this is what the statement becomes when we put n equal to 1 in the statement. तो यहाँ पे हमें इस स्टेटमेंट में मिलेगा n इक्वल 1 पुट करके u v पावर 1 आएगा यहाँ पे. सो k रन्स फ्रॉम 1 to 0 to 1, यहाँ पे बनेगा 1 c k, एंड हियर वी हैव सेम u k p and minus k. तो अब हम देखना चाहते हैं कि इसका राइट हैंड साइड क्या बनेगा. सो नाउ दिस इज इक्वल टू ऑन द राइट हैंड साइड पुटिंग k इक्वल टू 0. सो पहली टर्म यहाँ पे आएगी 1 c 0 u, तो यहाँ पे 0 v, तो ऊपर 1 minus 0, then plus now put k equal to 1, so we get 1 c 1, तो u के ऊपर पावर में 1 आएगा and v पावर 1 minus 1. So this is equal, now we know this 1 c 0 is always equal to 1, so the first term becomes u 0 v 1, then plus 1 c 1 is also equal to 1, and this gives u 1 v 0. Now what we mean by this notation is u 0. U 0 means the zero derivative of u, that means the function u itself, and v 1 means the first derivative of v, we can write it as v dash, then plus u1 means the first derivative of u, जिसको हम लिख सकते हैं u dash से, and v0 means the zero derivative of v, जिसको हम लिख सकते हैं simply v. और ये हम जानते हैं कि uv power 1, that means first derivative of uv, वो हमें मिल गया first function derivative of second plus the second function derivative of first, जो हम पहले से जानते हैं. प्रोडक्ट रूल इसी तरह से काम करता है फॉर डिफरेंशिएशन. तो इसका मतलब ये हुआ that the result is true for n equal to 1. So thus the result is true for n equal to 1. अब इसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के रूल के हिसाब से हम एज्यूम करेंगे द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m. सो नाउ दिस इज आवर सेकंड स्टेप. एज्यूम द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m. तो इसका मतलब क्या है? दैट इज व्हाट वी एज्यूम, दैट इज वी हैव दिस थिंग, द mth डेरिवेटिव ऑफ uv, तो ये इसके बराबर होगा. तो हमें हर जगह पे गिवन स्टेटमेंट में n की जगह पे m लिखना है. So this will be summation k from 0 to m. Now mck uk v m minus k. So this is what we mean by the statement is true for n equal to m. So we will now prove the statement is true for n equal to m plus 1. So we prove the statement is true, or the result is true. Result is
ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m+1। तो इसका मतलब हमें प्रूव करना है u v का m+1 डेरिवेटिव बन जाएगा समेशन k फ्रॉम 0 टू m+1 c k u k v m+1 माइनस k। तो अब हम देखेंगे कि इसका m+1 डेरिवेटिव क्या बनेगा। तो वो हम इस तरह से करेंगे। सो वी हैव दिस u v पावर m+1, दैट मीन्स इसका m+1 डेरिवेटिव, सो +1। तो इसको हम लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे m इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, तो हमें इसको इस तरह से करना होगा। दिस इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं द डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी पावर m। अब जो यू वी का m+1 डेरिवेटिव है, दैट इज इट्स द डेरिवेटिव ऑफ यू वी m डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव। सो देयरफॉर m+1 डेरिवेटिव ऑफ यू वी इज द डेरिवेटिव ऑफ m डेरिवेटिव ऑफ यू वी, जो हमने इस तरह से लिख लिया। अब so now we can write this as, so this is equal to d by dx of, अब जो mth डेरिवेटिव ऑफ u v है वो हमने इंडक्शन में एज्यूम किया है यहाँ पे इस स्टेप में। सो दिस इज आवर स्टेप फॉर mth डेरिवेटिव। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। समेशन k फ्रॉम 0 टू m c k डेरिवेटिव ऑफ u m माइनस k डेरिवेटिव ऑफ v। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले हमने लिया m+1 डेरिवेटिव ऑफ u, जो हम डिफाइन कर सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ mth डेरिवेटिव ऑफ u v। सो इट इज इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ, अब जो mth डेरिवेटिव ऑफ u v है वो हमने यहाँ पे एज्यूम्पशन स्टेप में एज्यूम किया है। तो दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। एंड देन द नेक्स्ट टर्म विल बी लाइक दिस। सो दिस इज इक्वल टू, अब जो यहाँ पे ये डेरिवेटिव है वी नो ये लीनियर फंक्शन होती है, तो हम समेशन को बाहर ले सकते हैं। दिस इज इक्वल समेशन k फ्रॉम 0 टू m, डेरिवेटिव को अंदर ले सकते हैं। बट यहाँ पे m c k जो है दिस ऑल्सो कांस्टेंट, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ, जो अंदर फंक्शन है u k v m माइनस k। तो ये बन गया समेशन m c k डेरिवेटिव ऑफ u k v m माइनस k। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, एक है u पावर k यानी k डेरिवेटिव ऑफ u, एंड दूसरी फंक्शन है m माइनस k डेरिवेटिव ऑफ v। तो इस पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं, जो हमारा एक्चुअली केस फॉर n इक्वल टू 1 है। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, समेशन k फ्रॉम 0 टू m c k। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में पहले हम u सपोज k का डिफरेंशिएशन करेंगे, वी विल गेट u k+1। तो हमें ये इस तरह से मिल जाएगा u, इसका डिफरेंशिएशन आएगा u k+1, और v को हम ऐसे ही रहने देते हैं v m माइनस k, यानी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन को ऐसे अनचेंज रख दिया। देन प्लस, अब सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, पहली फंक्शन को ऐसे ही रख लेते हैं। सो वी विल गेट u k एंड डिफरेंशिएशन ऑफ v, m माइनस k का डेरिवेटिव वो m माइनस k+1 बन जाएगा, यानी नेक्स्ट डेरिवेटिव पे पहुंच जाएगा। Okay, then we'll go here. This is equal to summation k running from 0 to m. This is equal to m c k। अब ये हम दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग लिखेंगे। So here we will have u k+1, then v m minus k, then plus. अब second summation, summation k running from 0 to m, u, sorry, again we will have this m c k here, m c k, then u k derivative and v m minus k+1 derivative। तो हमें यहाँ पे दो टर्म्स मिलेंगे। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, पहले हम सेकंड टर्म लिखेंगे, फिर हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे। सो दिस इज इक्वल टू समेशन k running from 0 to m c k, then k derivative of u and m minus k+1 derivative of v, then plus जो यहाँ पे पहली टर्म है वो यहाँ पे हम दूसरी टर्म लिख देंगे। समेशन k फ्रॉम 0 टू m c k, then k+1 डेरिवेटिव ऑफ u and m minus k डेरिवेटिव ऑफ v। अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहली टर्म को हम नेक्स्ट स्टेप में ऐसे ही लिख लेते हैं। समेशन k फ्रॉम 0 टू m, दिस इज इक्वल टू m c k u k v m माइनस k+1, देन प्लस। अब जो यहाँ पे ये समेशन है, हम यहाँ पे k की जगह पे रिप्लेस करेंगे k-1। तो हम k को रिप्लेस करने वाले हैं k-1 से।
तो उससे ये के स्टार्ट हो जाएगा 1 से लेकर m+1 तक। अब जो यहाँ पे सेकंड टर्म एक्टिवली है, इसमें के स्टार्ट होता है 0 से लेकर m तक, तो यहाँ पे m+1 टर्म्स होंगी गिवन बाय k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2 अब k इक्वल टू m। तो अब अगर हम k को रिप्लेस करेंगे k-1 से, तो k-1 स्टार्ट हो जाएगा 0 से, यानी k स्टार्ट होगा 1 से लेकर m+1 तक। तो इसको समेशन को हम ऐसे लिख लेंगे, सो कम समेशन k रनिंग फ्रॉम 1 to m+1 टू गेट ऑल द m+1 टर्म्स। अब हम यहाँ पे लिखेंगे m c k-1, यानी k को रिप्लेस किया k-1 से, u। अब अगर इस k को रिप्लेस करेंगे k-1 से, ये बनेगा k-1 + 1, सो दिस इज इक्वल k-1 + 1। इसी तरह से b यहाँ पे बन जाएगा m - k-1। Therefore, in the next step, this is again equal to summation k running from 0 to m. Now mck, this is here uk v m minus k plus 1. Then plus summation k running from 1 to m plus 1. And here we have this mc k minus 1. Now this u k v m minus k plus 1. Now if we compare these two, अगर हम यहाँ पे जो ये स्टेप हमारे पास था और ये स्टेप है सेकंड टर्म इन दोनों की, जो अंडरलाइन हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे अगर हम k इक्वल 0 पुट करेंगे तो पहली टर्म हमें मिलेगी mc0 ukvm। यहाँ पे k इक्वल 1 से हमें एग्जैक्टली वही टर्म मिलेगी mc0 u1 vm माइनस m+1 पर k इक्वल 1 हमें मिल जाएगा। तो जो टर्म हमें यहाँ पे k इक्वल 0 से मिलेगी वो यहाँ पे हमें k इक्वल 1 से मिलेगी। यहाँ पे जो k इक्वल 1 से मिलेगा ऊपर, तो नीचे वही k इक्वल 2 से मिलेगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से लास्ट टर्म जो हमें यहाँ पे k इक्वल m से मिलेगी वो यहाँ पे k इक्वल m+1 से मिलेगी। सो वी हैव दीज टू रिलेशंस एक्चुअली दे आर सेम। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी डू, अब हम कुछ टर्म्स यहाँ पे सेपरेट करेंगे। हम पहले सम का पहली टर्म सेपरेट करेंगे और दूसरे सम का लास्ट टर्म सेपरेटली लिखेंगे। नाउ पुट k इक्वल 0 हियर, सो वी विल गेट mc0 u0 v m+1 जो यहाँ पे पहली टर्म थी। तो फिर रिमेनिंग समेशन हम स्टार्ट ऐसे ही कर लेंगे, समेशन k रनिंग फ्रॉम 1 to m, k इक्वल 0 को हमने सेपरेट कर दिया एंड समेशन इज सेम mck uk v m minus k plus 1। तो बाकी एग्जैक्टली सेम रहेगा, सिर्फ k इक्वल 0 हमने इससे सेपरेट कर दिया। इसी तरह से जो दूसरा टर्म है इसमें हम करेंगे k रनिंग फ्रॉम 1 to m बराबर पहली m टर्म्स हम लिखेंगे, तो यहाँ पे सेम रहेगा mc k-1 u k v m minus k plus 1। लेकिन जो ये दूसरा सम है इसकी लास्ट टर्म हम अलग लिखेंगे देन प्लस। तो लास्ट टर्म लिखने के लिए हमें k को रिप्लेस करना होगा m+1 से। सो वी विल गेट दिस m c m, क्योंकि यहाँ पे k की जगह पे अगर हम m+1 लिखेंगे वी विल गेट m+1 माइनस m ही रहेगा। सो हियर वी विल गेट u m+1 v, यहाँ पे आप k की जगह पे m+1 लिखना है तो ये माइनस m -1 बनेगा, तो फाइनली वी विल गेट v0। सो दिस अवर दिस स्टेप जहाँ पे हमने पहली सम से पहला टर्म सेपरेट किया और दूसरे सम से लास्ट टर्म सेपरेट कर दिया। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब हम पहली टर्म फिर से ऐसे लिखेंगे mc0 u0 v m+1 देन प्लस। तो अब हम देखेंगे ये जो हमारे पास सेकंड टर्म है यहाँ पे ये वाला समेशन और ये वाला समेशन, इनमें दोनों में समेशन है k रनिंग फ्रॉम 1 to m, और बाकी जो टर्म्स है mck यहाँ पे है, mck-1 यहाँ पे है, लेकिन बाकी है uk यहाँ पे भी, uk यहाँ पे भी, bm-k+1 यहाँ पे भी और bm-k+1 यहाँ पे भी। तो हम एक तो समेशन इसमें कॉमन ले सकते हैं, समेशन k रनिंग फ्रॉम 1 to m, फिर uk bm-k+1 भी कॉमन ले सकते हैं, तो बाकी बच गया mck ये प्लस हो जाएगा mck-1 के साथ, और कॉमन जो है इसमें वो है uk v m-k+1। तो ये हो गया दोनों टर्म्स का समेशन, देन प्लस जो हमने यहाँ पे टर्म सेपरेट की थी mcm u m+1 v0। and now see what we use। now we will use the fact here, जो mc0 होता है this is equal to 1, लेकिन यही है वैल्यू बराबर m+1 c0। तो जो अगर नीचे 0 होगा ऊपर कोई भी इंटीजर होगा दिस ऑलवेज इक्वल टू 1। एंड सेकंड थिंग इज जो mcm है, पास्कल्स ट्रायंगल में जो लास्ट कोफिशिएंट होता है या बाइनोमियल थ्योरम में फर्स्ट एंड लास्ट कोफिशिएंट है, mcm भी 1 के बराबर होता है और ये है आल्सो इक्वल टू m+1 c m+1, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1।
हो गया एक चीज़, जो हम पहली टर्म यहाँ पे सब यूज़ कर सकते हैं और इस लास्ट टर्म में यूज़ कर सकते हैं। अब जो बीच वाली टर्म है यहाँ पे जो समेशन है, दिस इज एम सी के प्लस एम सी के माइनस वन, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू एम प्लस वन सी के, एम प्लस वन सी के, ये इसके बराबर होता है, जो हमने किसी प्रीवियस क्लास में प्रूव किया होगा। सो प्रूव इन प्रीवियस क्लास, तो ये 12th क्लास से सारे जानते होंगे, वेन बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है। तो ये तीन चीज़ें अब हम इस ऊपर वाले समेशन में यूज़ करेंगे। तो अब जो ये समेशन है, इसका लेफ्ट हैंड साइड हम जानते हैं वो है यू बी पावर एम प्लस वन, और अब राइट हैंड साइड जो है इस एम सी जीरो की जगह पे हम लिखेंगे एम प्लस वन सी जीरो, क्योंकि एम सी जीरो भी वन है और एम प्लस वन सी जीरो वो भी वन के बराबर ही है। और बाकी है यू जीरो वी एम प्लस वन प्लस जो ये समेशन है, समेशन के रनिंग फ्रॉम वन टू एम। अब इस एम सी के माइनस वन को हम लिखेंगे एम प्लस वन सी के, सो दिस इज इक्वल एम प्लस वन सी के, एंड द रिमेनिंग इज हियर यू के वी एम माइनस के प्लस वन, देन प्लस लास्ट टर्म है एम सी एम, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एम प्लस वन सी एम प्लस वन से, सो दिस इज इक्वल एम प्लस वन सी m plus 1, and it has the m plus a plus 1 with m plus 1 derivative of u, so this is equal to m plus 1 derivative of u and 0 derivative of u। तो अब यहाँ पे चार टर्म्स है राइट हैंड साइड में, लेकिन इनको हम कंबाइन कर सकते हैं एक ही समेशन में अब। सो दिस समेशन रनिंग फ्रॉम k रनिंग फ्रॉम 0 to m plus 1, और नया समेशन है u, सॉरी दिस इज फर्स्ट m plus 1 c k u k v m minus, दिस इज v m प्लस वन माइनस के, इसको हम लिख सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे चार टर्म्स है, फर्स्ट टर्म सॉरी सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, जो ये तीन टर्म्स है, इनको हम कंबाइन कर सकते हैं एक ही समेशन में, and we can start this summation from 0 to m plus 1. Now see, if we put m equal to k equal to 0 here, we will get m plus 1 c0 u0 b m plus 1, जो यहाँ पे पहली टर्म है, एंड इसी तरह से m plus 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे k की जगह पे, तो हमने यहाँ पे सम की लास्ट टर्म मिलेगी। बट नाउ जो यहाँ पे राइट हैंड साइड है, दिस इज एक्चुअली एग्जैक्टली द रिजल्ट व्हिच वी शुड ऑब्टेन यूजिंग द लेबनीज़ थ्योरम, व्हेन वी रिप्लेस n by m plus 1। तो इसका मतलब ये है, दिस मीन्स द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m plus 1। वो हम इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर हम लेबनीज़ थ्योरम के स्टेटमेंट में n की जगह पे m plus 1 लिखेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा जो हमें यहाँ पे मिला है। सो अगर अब ये ट्रू है m plus n के लिए भी, m plus 1 के लिए भी, hence by the principle of mathematical induction, hence by the principle of mathematical induction, the result is true for all n. So this completes the proof of Leibniz theorem. Now we shall take one example as an application of Leibniz theorem to verify the inner derivative of a product of two functions. So we will take the example like this: if y is equal to e power a sin inverse x, if we have the function e power a sin inverse x, then show that the first part is, we will prove this 1 minus x square y2 minus xy1 minus a square y is equal to 0, and then we will apply the Leibniz theorem over this first part and prove this thing: 1 minus x square y n plus 2 minus 2n plus 1 x y n plus 1 minus a square n square plus a square into yn is equal to 0 using Leibniz theorem, using Leibniz theorem। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में हमने जो नोटेशन यूज की है yn plus 2 yn plus 1 and yn, तो यहाँ पे yn का मतलब है nth डेरिवेटिव ऑफ y, yn plus 1 का मतलब है n plus 1 डेरिवेटिव ऑफ y, एंड yn plus 2 मीन्स n plus सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y। तो अब हम पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे। सो इन द सॉल्यूशन वी आर गिवन y is equal to e power a sin inverse x। तो पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, देन द फर्स्ट डेरिवेटिव y1 which is equal to, first we know derivative of e is e, so this is equal to e power a sin inverse x,
उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ ए साइन इनवर्स एक्स इसको मल्टीप्लाई करना है यूजिंग द differentiation rule for the composition of functions. So this is differentiation of a sine inverse of x. Therefore, this is equal to e power sine inverse x in fact e power a sine inverse x. Now derivative of sine inverse x is equal to 1 divided by 1 minus x square. So this will be equal to a divided by square root of 1 minus x square. So therefore what we get, so this implies y1 is equal to, अब जो यहाँ पे ये है e power a sin inverse x, this is equal to y, तो इसको हम लिख सकते हैं y then a, फिर हम लिख सकते हैं divided by square root of 1 minus x square. तो ये है इसका पहला डेरिवेटिव. अब दूसरा डेरिवेटिव लेने के लिए पहले डेरिवेटिव को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे स्क्वायर बोथ साइड्स. तो स्क्वायर बोथ साइड करने से हमें क्या मिलेगा, we will get this y1 square is equal to a square y square divided by 1 minus x square. So this will give us y1 square into 1 minus x square is equal to a square into y square. Now let's call this as our equation number 2, or we shall call the given equation as equation number 1. So let's call this as equation number 1 and let's call this as equation number 2. Now differentiate equation 2 with respect to x. Now differentiate equation 2 both sides. हमें मिलेगा इस तरह से d by dx of y1 square into 1 minus x square is equal to d by dx of a square y square. अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं. दिस गिव्स, so we can take the first function y1 square. Now derivative of 1 minus x square is minus 2x. Then plus second function is y minus x square and derivative of y1 square. First it is the derivative of y1 square, that's 2y1. Then derivative of y1, that's y2. Now this is equal to, अब यहाँ पे a square जो है it is constant और y square का डेरिवेटिव है 2y, y का डेरिवेटिव है y1. So this gives, अब यहाँ पे पहली टर्म में भी 2 है, दूसरी टर्म में 2 है और राइट हैंड साइड में भी 2 है, तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा. Therefore we will get this 1 minus x square into y1 then minus x into y2, in fact y1 into यहाँ पे y2 भी आएगा, then minus this is equal to x y1 square then minus हम यहाँ पे ये कर सकते हैं a square y into y1 is equal to 0. अब यहाँ पे क्या हमें मिला, इन तीनों टर्म्स में है y1 कॉमन, तो हम y1 से डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड्स. सो दिस इम्प्लाइज 1 minus x square into y2 minus x y1 minus a square y. This is equal to 0. So therefore this is the solution of the first part, which proves the first part. अब इसी फर्स्ट पार्ट पे हम क्या करेंगे, we will apply the Leibniz theorem and find the nth derivative of this equation directly. So now apply Leibniz theorem on this. Now apply Leibniz theorem on this equation 1 minus x square y2 minus xy1 minus a square y is equal to 0. We obtain, तो लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करने से हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, तो हमें ये मिलेगा dn by dx power n of the function 1 minus x square y2 minus xy1 minus a square y is equal to, now n derivative of 0 is 0, तो राइट हैंड साइड में फिर से 0 ही आएगा. अब इन तीनों टर्म्स को हम अलग अलग डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं. सो वी कैन राइट दिस एज dn by dxn of the function 1 minus x square y2 then minus nth derivative of the second function xy1 then minus the nth derivative of a square into y. This is right hand side equal to 0. Now let's call this equation as equation number 3. अब इक्वेशन नंबर 3 में तीन टर्म्स है हमारे पास. तो पहली टर्म है nth डेरिवेटिव ऑफ दिस 1 minus x square into y2 जो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है. सेकंड टर्म में भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, एक फंक्शन है x, दूसरी फंक्शन है y1. तीसरी टर्म में भी है एक फंक्शन x a square, दूसरी फंक्शन है y. अब इन तीनों टर्म्स के लिए हम लेबनीज़
थ्योरम अलग अलग से अप्लाई करेंगे और तीनों टर्म्स का nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे. So now take the first term. First term is dn by dxn of 1 minus x square into y2. तो ये है इसकी पहली टर्म. इस पे हम अप्लाई करेंगे लेबनीज़ थ्योरम. So now here let our u is equal to 1 minus x square and v is equal to y2. Then the Leibniz theorem states, then we will take the derivatives of this u and v, and we know the third derivative of u will be equal to 0. तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, u 0 derivative of u is 1 minus x square. The first derivative of u is equal to minus 2x. The second derivative of u is equal to minus 2, and all the higher derivatives of u will be equal to 0. And u then greater than or equal to 3 जो derivative होंगे, they will all be equal to 0. And similarly जो v का next derivative होगा that will be y3 और इसका nth derivative होगा y n plus 2 and so on. तो अब जो हम लेबनीज़ थ्योरम से कर सकते हैं, so by लेबनीज़ थ्योरम this nth derivative of dn by dxn of this uv, we know this is equal to summation k running from 0 to n ck kth derivative of u n minus kth derivative of v. तो इसको अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा nc0 u0 vn प्लस nc1 u1 vn minus 1 प्लस nc2 u2 vn minus 2 प्लस so on. और लास्ट में ये n टर्म आएगी, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n plus 1. अब यहाँ पे जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम जानते हैं कि nc0 is equal to n, तो पहली टर्म यहाँ पे आएगी n, और u0 जो है 0 डेरिवेटिव ऑफ u that is equal to the function u itself, that is 1 minus x square, and nth derivative of v. तो यहाँ पे जो फंक्शन v है हमारे पास, it is equal to y2. तो जो v का nth डेरिवेटिव होगा that will be simply yn plus 2. So therefore यहाँ पे हम लिख सकते हैं this is equal to yn plus 2. Then plus now nc1 this is equal to n. अब जो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ u है that is equal to minus 2x, and n minus 1th derivative of v that is equal to y n minus 1 plus 2. Then plus अब nc2 is equal to n into n minus 1 divided by 2, u2 जो हम कैलकुलेट किया है that is equal to minus 2, and vn minus 2 means yn minus 2 plus 2. अब उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी nc3 u3, लेकिन u3 0 है. उसके बाद जो बाकी सारी टर्म्स है वो हायर डेरिवेटिव ऑफ u की वजह से सारी 0 बन जाएंगी. तो इस तरह से इस सम में से 3 टर्म्स आएंगी. सो फर्स्ट टर्म इज n into 1 minus x square by n plus 2. Second term is minus 2 nx by n plus 1, and third term is plus n into, or we can say minus, actually minus 2 की वजह से, और minus 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा. So we will get n square minus n into y n. Next, the nth derivative of xy1 जो वहाँ पे ऊपर इक्वेशन 3 में सेकेंड टर्म है. तो उसके लिए हम इस तरह से करेंगे, we have to compute dn by dx power dxn of xy1. तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, so we will let u is equal to x and v is equal to y1. अब यहाँ पे u का सेकंड डेरिवेटिव ही 0 बन जाएगा, तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं. so then 0 डेरिवेटिव ऑफ u is equal to x, first derivative of u is equal to 1, and all the higher derivatives of u they are all equal to 0, and जो v का nth डेरिवेटिव होगा this is equal to yn plus 1. अब यहाँ पे हम लेबनीज़ थ्योरम कैसे यूज़ कर सकते हैं, therefore by लेबनीज़ थ्योरम अब इस स्टेप में जो dn by dxn of x y1 होगा this will be equal to n c0 u k u0 vn plus nc1 u1 v n minus 1 plus nc2 u
to the n minus 2 plus so on. Now substituting the values, we know nc0 is equal to 1. अब यहाँ पे जो u0 है, it is now the u0 is here x, and जो vn है nth derivative of y1, that will be the n plus 1th derivative of y. अब nc1 that's equal to n, अब जो u1 है it is also equal to 1, और n minus 1th derivative of y2 over that will be equal to y n minus 1 plus 1. Now u2 second derivative of u और higher derivatives of u are all equal to 0 in this case. तो अब इस सम में से दो ही टर्म्स आएंगी. पहली टर्म है x y n plus 1 और दूसरी टर्म है प्लस n y n. एंड अब फाइनली nth derivative of the third term जो हमने वहाँ पे ऊपर लिखी है इक्वेशन नंबर 3 में, the third term is a square y. अब यहाँ पे जो a square it is a constant, so we can write a square nth derivative of y, तो जिसको हम सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं a square y n, which is simply a notation. तो अब हम यहाँ पे जो इक्वेशन थर्ड है उसके बाद हमने nth डेरिवेटिव ऑफ x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन किया था, y2 किया था, और वहाँ का आंसर हमें आया था ये वाला जिसको हम रख सकते हैं अब नाम इक्वेशन नंबर 4. उसके बाद x y 1 का डेरिवेटिव, इसका हम नाम रख सकते हैं इक्वेशन नंबर 5. एंड फाइनली द डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर y, इस इक्वेशन को हम नाम रख सकते हैं इक्वेशन नंबर 6. सो नाउ यूजिंग equations 4, 5 and 6 in equation number 3 we get, तो वहाँ पे हमें nth derivative of the three terms मिल जाएगा. nth derivative of this 1 minus x square y2 जो हमने फोर्थ इक्वेशन में कंप्यूट किया है, that was equal to n times 1 minus x square into y n plus 2, then minus 2nx by n plus 1, then minus 2nx by n plus 1, then minus n into n minus 1 by n, then minus n into n minus 1 by n. उसके बाद यहाँ पे फिर माइनस करना है इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि जो इक्वेशन नंबर 3 है उसकी सेकंड टर्म है माइनस n डेरिवेटिव ऑफ x by 1, और इसी तरह से थर्ड टर्म है माइनस n डेरिवेटिव ऑफ e स्क्वायर y. तो इस तरह से बाकी दो टर्म नेगेटिव ही आएंगी. सो हियर वी विल गेट x by n plus 1 minus n by n, then minus a square by n is equal to 0. Now we will make some simple calculations here. Okay, now here we are little bit mistaken. हमें एक चीज़ का यहाँ पे लिखना है, जो हमने यहाँ पे nc0 लिखा है, nc0 is equal to 1, लेकिन हमने यहाँ पे n लिखा है, तो ये 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 1 ही आएगा. nc0 is 1, then nc1 that will be equal to n, and nc2 that's n into n minus 1 divided by 2, और बाकी सब कुछ ठीक है. So in the equation number 4 we will not have n in the first term, तो यही n हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया, तो यहाँ पे n नहीं है. So now simplifying this, we will get this 1 minus x square by n plus 2 minus 2nx by n plus 1 minus, अब यहाँ पे पहली टर्म आएगी n square by n, और दूसरी टर्म आएगी प्लस n by n, then minus x by n plus 1, then minus n by n, then minus a square by n is equal to 0. और इसमें हम देख सकते हैं कि n by n और ये वाला n by n दोनों कैंसिल होंगे, and we will be simplified to 1 minus x square by n plus 2 जो पहली टर्म है. अब यहाँ पे yn plus 1 और यहाँ पे yn plus 1 आप कॉमन ले सकते हैं, और फिर बचेगा माइनस 2n plus 1 इंटू एक्स वाई n plus 1, ये इस टर्म को इस टर्म के साथ कंबाइन करके. अब हम ये yn वाली दोनों टर्म को कंबाइन करेंगे, तो हमें मिलेगा माइनस n square plus a square into yn is equal to 0, and this was what we verified to prove. So this completes the solution.